Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. पिछले क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें कि जो अर्लियर कंसेप्ट है उस पर डिस्कस किया था। उसके अलावा मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, इन दोनों पे डिटेल में हमने सारी बात की थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इस टेबल के बेसिस पे सारी डिस्कस हुई थी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किस तरह से अरेंज किए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या रिलेशन है, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए पीरियोडिक टेबल में और ज़्यादा सुधार किए गए। तो आज के क्लास का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, electronic configuration of elements and periodic table। तो इस पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now this is the topic, electronic configuration of elements and periodic table। The above principles and electronic configuration of the atoms of elements provide a theoretical foundation for the classification of elements. It is now recognized that the periodic table is essentially the consequence of the periodic variation in the electronic configuration of the atoms of the elements, which determine the physical and chemical properties of the elements and their compounds. The elements in vertical column, that is in a group of the periodic table, exhibit similar chemical behavior. This is due to the fact that these elements have same number and same distribution of electrons in their outermost orbital, that is in the valency shell. For example, the group first elements, alkali metals, which show same chemical behavior, possess same valence shell configuration, that is NS1. Similarly, the group second, seventh A elements, which are known as halogens, are similar in chemical properties, possess the same valence shell configuration NS2 and P5. In the periodic table, the elements have been arranged in order of increasing atomic number, that is, increased number of orbital electrons. Thus, each element contains one more orbital electron than the preceding elements. Each period starts with NS1 configuration and ends with a noble gas. Noble gas configuration, which is NS2 and P6, except helium, which has NS2 in the first period. Now rest of the elements का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैसेस का, हीलियम के अलावा NS2 and P6, the sequence in which the various energy levels are filled determine the number of elements. Now first period, 1s element, 1s, 2 elements in this period. सेकेंड पीरियड 2s 2p सब शेल प्रेजेंट होता है, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3s 3p, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी लास्ट सेल जो होती है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NSNP बताया, तो ये 3s and 3p होता है, 8 एलिमेंट्स इन दिस पीरियड। फोर्थ पीरियड 4s 3d 4p इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हियर 18 एलिमेंट इन दिस पीरियड।
फिफ्थ पीरियड 5s4d 5p, ये होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप में 18 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s4d 5p। सिक्स पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6s4p 5p 6p। Here 32 elements in this group. 7 period का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 7s 4s 6d 7p and have 32 element in this period. तो इस तरह से देख सकते हो कि जब हम एलिमेंट्स को उनके जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में उनको हम अरेंज करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसी तरह से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जैसे कि पहला जो फर्स्ट पीरियड में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s tp, इस तरह से एक एक शेल बढ़ता जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता जाएगा जब पीरियड होगा। लेकिन जब हम ग्रुप में जाएंगे तब ये सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। किस तरह से होगा? The ground state electronic configuration of the elements are given in the following table. आगे भी दिखाएंगे। For the sake of simplicity, condensed electronic configuration of elements are given. In writing condensed electronic configuration of an element, the electronic configuration of the nearest noble gas of lower atomic number is represented by its chemical symbol in square bracket. For example, the condensed electronic configuration of sodium can be written as, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या होता है 1s1 2s2 2p6 3s1। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि इसके बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 एनी का नियॉन का होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट का शेल का लास्ट सब शेल या शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये कहलाता है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो यहाँ पे दिया था दीज आर द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ये बताता है कि जो वैलेंस शेल है इन पीरियड्स के एलिमेंट्स की उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। और कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से जो नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर की होगी उसका सिंबल पहले लिख देंगे, उसके बाद रेस्ट जो है बाहर लिख देंगे। नाउ सी दिस अगेन, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स आर the electronic configuration of the nearest noble gas of lower atomic number is represented by its chemical symbol in square bracket. For example, the condensed electronic configuration of sodium can be written as. Now, electronic structure of element. तो सबसे पहले जो फर्स्ट पीरियड है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, उनका उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ इसके सिंबल है। हीलियम सेकेंड एलिमेंट है, उसका 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम सेकेंड पीरियड में आते हैं। सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का होता है 1s2 2s2 1s2 2s1। तो हीलियम 1s2 हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, तो यहाँ 1s2 की जगह हम हीलियम लिख देते हैं और बाकी जो शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो शेल है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बेरिलियम 1s2 2s2 होता है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है 1s2, उसको लिख दिया, उसके बाद 2s2। तो ये इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा लिखेंगे तो लंबा हो जाता है, इसलिए हम शार्ट में ये तरीका निकालते हैं। अब जितने भी कम एटॉमिक नंबर के एलिमेंट हैं, क्योंकि सेकेंड पीरियड है तो शुरुआती है हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम,
सेकेंड पीरियड में फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होंगे। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल का हो जाएगा 2s2 2p2, और उससे पहले का हीलियम के बराबर है। इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाएगा। फ्लोरीन और नियॉन का क्या होता है, हीलियम के बाद 2s2 2p6, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं पीरियड थर्ड में। कौन से एलिमेंट है, सोडियम। इसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ne के बराबर होता है। शुरू का जो 1s2 2s2 2p6 Ne के बराबर, नियॉन के, जो कि यहाँ अभी देखा नियॉन के बराबर। तो यहाँ पे नियॉन लिख देते हैं और आगे का 3s1। इसी तरह मैग्नीशियम 3s2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रेगुलर, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ धीरे धीरे ये शेल भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब पी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अगली शेल शुरू होगी। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब पी जब शुरू हो गया, P1 से P2 P3 P4 पीरियड में इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में बढ़ते जाएंगे। और लास्ट का जो नोबल गैस एलिमेंट है, नोबल गैस है, वो है आर्गन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ne3s2 3p6। उसके बाद आ जाते हैं पीरियड फोर्थ में। पहला एलिमेंट है पोटेशियम। अब यहाँ आर्गन के बराबर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू का होगा और बाद वाला इस तरह से लिखते जाएंगे। पीरियड फोर्थ में पहला एलिमेंट 4s1 है, इसके जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है। और ये सारी क्या है, कंप्लीट शेल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। कैल्शियम का 4s2, इसी तरह स्कैंडियम का 3d1 4s2। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल शुरू हो गई है तीसरी में, तो ये अब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2, इसी तरह क्रोमियम का 3d5 4s1, मैग्नीज 3d5 4s2 3d6, कोबाल्ट 3d7। और बाहर सब में क्या है, क्रोमियम में 4s1 है, उसके अलावा सब में 4s2 है लास्ट में। इसी तरह निकिल एनाइल, तो यहाँ पे क्या है, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीट फिल्ड ऑर्बिटल की थ्योरी लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगी तो ये स्टेबल होगी, इसलिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जबकि 4 होना चाहिए था, और यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन। यही चीज़ यहाँ है इसमें कॉपर में। अगर 9 होगा तो ये अनस्टेबल होगी, तो स्टेबिलिटी देने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन s इधर ट्रांसफर करता है, और s चूंकि अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गई तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। इसी तरह जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गैलियम, जर्मेनियम, तो ये अब यहाँ पे 3d जब कंप्लीट हो गई तब ये p ऑर्बिटल, यानी s के बाद p ऑर्बिटल स्टार्ट हो गई, तो ये p1 p2 p3 एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आएगा। सेलेनियम का, फिर ब्रोमीन का, उसके बाद लास्ट में किसका होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन, ये हो जाएगा Ar, यानी यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन इसका आर्गन के बराबर है। उसके बाद वैलेंस शेल और उसके अंदर की शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बराबर है। उसके बाद है पीरियड 5। पहला एलिमेंट है पीरियड 5 का रुबीडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन, नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी वो क्रिप्टॉन। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 5s1, स्ट्रॉन्टियम 5s2। उसके बाद एक्टियम में d ऑर्बिटल शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब ये d1 d2 d3 d4 इस तरह से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है इसके, और ये 5s1 हो जाता है। उसी तरह से टेक्नीटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से है। रुथेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद है रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से ग्रेजुअली चेंज होते जा रहे हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कंप्लीट होने के बाद 5s0 यहाँ पे, यानी 4d10 तक है पैलेडियम का।
उसके बाद ये 5s1 5s2 शुरू हो गया। सिल्वर कैडमियम शेल देखो बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है नंबर ऑफ शेल पीरियड में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 10 का ये होगा एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टेलुरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आयोडीन और लास्ट में किसका होगा जिनॉन। जिनॉन का ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, इसमें 8, तो ये इसका लास्ट एलिमेंट है। उसके बाद है पीरियड 6। पीरियड 6 का पहला एलिमेंट सीजियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा। फिर बेरियम, लैंथेनम, लाइन से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। सीरियम, पैरासोडाइनियम, नियोडाइनियम, ये सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। प्रोमीथीनियम, इन सबके ये सिंबल है। उसके बाद आगे के एलिमेंट्स जो भी हैं सेमेरियम, इवोपियम, गोडालिनियम एंड टर्बियम, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। डाइस्पोसियम, उसके बाद हॉल्मियम, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ये लाइन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ल्यूटेशियम। तो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला है हाफनियम, जिसका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। उसके बाद के एलिमेंट ये सारे प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम सारे इसमें है। लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टेटीन, रेडॉन। रेडॉन इज द लास्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो ये पीरियड 6 था और ये है पीरियड 7। फ्रांशियम है पहला एलिमेंट, उसके बाद रेडियम, उसके बाद एक्टीनियम, फिर थोरियम, उसके बाद प्रोटैक्टियम। तो ये पीरियड में किस तरह से ग्रेजुअली चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये सारे 7th एलिमेंट 7 पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जबकि इससे पहले जो दिखाया था वो 6th पीरियड के एलिमेंट्स थे। ये सारे सबके नाम हैं, उनके मॉलिक्यूलर जो उनका जो सिंबल है, उसके बाद इनका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सारे एलिमेंट इस तरह से कंप्लीट यानी पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे विद सिंबल दिखा दिया। नाउ मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको देख चुके हो किस तरह से इसमें 8 पीरियड और 0 पीरियड मिला करके टोटल कितने 9th इसमें 1 to 8 ग्रुप, उसके बाद 0 ग्रुप, तो 9 ग्रुप है इस मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप तक हर ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सब ग्रुप के एलिमेंट जो हैं उनमें ज़्यादा सिमिलरिटी है, जबकि ए और बी सब ग्रुप में उतनी सिमिलरिटी नहीं है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है। और 8 ग्रुप में 4th पीरियड से 3 एलिमेंट्स के ट्रायड रखे गए, क्योंकि इनके जो इनकी प्रॉपर्टीज थी वो मिलती जुलती थी। और 0 ग्रुप बाद में इसकी डिस्कवरी हुई। 0 ग्रुप में सारे नोबल या इनर्ट गैसेस को रखा गया है। तो ये सारी चीज़, और उसके बाद पीरियड कितने हैं 1 2, ये सारे पीरियड है 7 पीरियड। और ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज को 57 यहाँ पे पोजीशन दी गई है लेंथेनाइड सीरीज को 57 to 71 एलिमेंट रखे गए हैं यहाँ पे।
यही है ना। और उसके बाद एक्टिनाइट को कहाँ पे जगह दी गई है? 89, एक्टिनाइट सीरीज को इस यानी थर्ड ग्रुप और 7 पीरियड में, और इसको थर्ड ग्रुप और 6 पीरियड में पोजीशन दी गई है। तो ये रिवाइज हो गई मेंडलीफ की जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल थी। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का बोर्स क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय बोर is based on complete and incomplete energy shell. The elements have been grouped into 4 types. First, inert gases. In the atoms of these elements, in the atoms of these elements, the S and P subshell of the outermost shell are completely filled, with the exception of helium, which has 1s2 configuration. All other have ns2 and p6 configuration. Because of stable configuration, these elements do not show chemical activity under normal condition. These are all gases under normal condition and thus termed as inert gases. Under special condition, the higher members do form some compounds with other elements, and hence the name has been changed to noble gases. 7 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, and UO belong to this group. This group has unknown at the time when Mendeleev presented the periodic table. These elements are the end members of the respective periods of the periodic table respectively. Now, second type of elements are representative or normal elements. Elements in which atoms have all shells complete except outermost shell which is incomplete. The number of electrons in the outermost shell varies from 1 to 7. The configuration of outermost shell varies from 1s1 to 1s2 and p5. These consist of some metals, all non-metals and metallites. These are the elements which are found in nature in abundance and active in nature. On account of this, these elements are called representative elements. All the 3 types of valencies are observed in the case of these elements. These elements have one of the following configuration in their outermost shell. Uh, these are the number of period. तो फर्स्ट पीरियड में क्लासिफिकेशन क्या होता है? 1s1 पीरियड. these are the group. तो फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट जो शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 होता है, दूसरे में 1s2, थर्ड ग्रुप में 1s2 एंड p6, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये भी रिप्रेजेंट करता है. उसके बाद फोर्थ ns2 एंड p6 फोर्थ ग्रुप या फोर्थ इसका जो है इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. फिफ्थ में इसमें फिफ्थ हो जाएगा अगले एलिमेंट का, फिर अगले एलिमेंट में 6 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, और इस जो सेवेंथ ग्रुप में एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np5, यानी ये सेवेंथ ग्रुप के मेंबर होंगे. The number of electrons present in the outermost shell signify the group to which these elements belong. This is in case of Mendeleev periodic table. Now, third type of elements are transition elements. In the atoms of these elements, the outermost shell and the penultimate shell means next to the outermost shell. Next to the outermost shell is known as penultimate shell. Are in the atoms of these elements, the outermost shell and the penultimate shell are incomplete. These elements have the general configuration n minus 1d, 1 minus 9, ns 0 to 1 or 2. यानी इस एलिमेंट इस जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उससे अंदर की पेनल्टीमेट ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीट होती है. दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट.
either in the ground state or in excited state. These elements are present in fourth, fifth, sixth, and seventh period of the periodic table and called transition elements. There are four transition series. Every series consists 9 elements. Each series start with a number of third group and end with a number of first group. There are four transition series. Every series consists of 9 elements each. Each series start with a member of third group and end with a member of first group. So first series scandium 2 copper. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D129 4s2. सेकेंड सीरीज Y39 to AG47. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का 3D1-9 5s2. एंड थर्ड सीरीज है LA57 to AU79. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D1 to 9 6s2. The elements from cesium to Lu71 are not included in this group. Now fourth series actinium, ये सबके इलेक्ट्रॉनिक ये सबके एटॉमिक नंबर्स हैं AC89, उसके बाद ये DD SG सबके इलेक्ट्रॉनिक दिए हुए हैं एटॉमिक नंबर फोर्थ सी सीरीज का. दीज और फोर्थ सीरीज में ये सारे एलिमेंट है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए. द एलिमेंट बिलोंग टू दिस ग्रुप आर all metals. Now inner four type of elements according to Bohr is inner transition elements. These are all फोर्थ सीरीज एलिमेंट्स, जबकि इस सीरीज में इस तरह से इसको इंक्लूड नहीं किया गया. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ जाते हैं. Atoms of these elements have 3 outermost shells incomplete. The general configuration is n-2 f1 to 14 इलेक्ट्रॉन f में हो सकता है और दूसरा n-1 d 0 to 1 and ns2. तो जनरल इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है n-2 f1 to 14, n-1 d 0 to 1 and ns2. There are two series of elements, lanthanides or rare earth, cesium to lawrencium. C58 to 71 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? lanthanides. And actinides from thorium 92, lawrencium 103. Each series consists of 14 elements. That is, in the lanthanides, 4f is gradually filled up, while in actinides 5f orbital is gradually filled up. The properties of these elements are similar to transition elements. The members of actinide series are radioactive and majority of them are not found in nature. The element from atomic number 90 onwards are The element from atomic number of 93 onwards are called transuranic elements and have been discovered by artificial means. In this classification, the elements Zn, Cd, Hg, and Cn have not been included in any of the four group of elements. The elements Lu and Lr of the inner transition groups have n-2f shell complete consisting 14 electrons. Hence, their inclusion in this group is not justified. Now, differentiating electron configuration. Differentiating electron configuration. This classification divides the element into four types: S, P, D, F block elements, depending on the nature of the atomic shell into which the last electron enters. The last electron is called as differentiating electrons. This classification is most rational and is now commonly in use.
The energy shell into which the last electron enter is of highest energy. This may not always belong to the outermost energy shell. In general, it can be said that above principle is followed in filling of various energy shell with few exceptions. The first type of element is S block elements. In these elements, the last electron enters the ns energy shell. The maximum capacity of ns energy shell is of two elements. Thus, these elements have valency shell configuration either ns1 or ns2. The members of this block lie on the extreme left of the periodic table. The elements having ns1 configuration are called alkali metals, while those having ns2 configuration are called alkaline earth metal. तो ग्रुप फर्स्ट, ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप फर्स्ट के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनके NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका जब कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था लिखा हुआ वो और क्लियर होगा। अब ग्रुप फर्स्ट का पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरा अल्कली मेटल्स में आ जाता है लिथियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1, यानी लास्ट जो शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1। जितने भी इसके लास्ट सेल होंगे सारे एलिमेंट्स के, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरह से लिखेंगे 1s2, ये हीलियम का हो गया और इसको हम बाहर लिख देते हैं। सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, ये ns1 है और कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में कितना है 4s1, ये कंप्लीट ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीट शेल हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बराबर है और लास्ट में है 4s1। तो ये ns1 जो है ये आ रहा है। इसी तरह रुबीडियम का इस तरह से 5s1, अगले मेंबर का 6s1 और उसके अगले मेंबर का 7s1 और कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं ग्रुप सेकंड पे। ग्रुप सेकंड में पहला एलिमेंट है हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, एक्चुअली बिलोंग टू 0 ग्रुप में है ये, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही लिखा जाएगा यहाँ। बेरिलियम दिस इज नॉन 1s1। अब है बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है ns2 इसका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लास्ट में ns2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट का है, जो यहाँ भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हो। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि नोबल गैस के बराबर है उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं और बाहर इसके जो बचा ये उसको यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये देखा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, and alkaline earth metal beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, that is S block elements are the following. They are soft metal, possess low melting and boiling points, have the largest atomic radii in their corresponding period and are good conductors of heat and electricity. They have low values of ionization energies and hence highly electropositive. They are very reactive and readily form ionic compounds. They show a fixed valency which depend on the number of electrons present in the outermost shell. The alkali metals show monovalency while alkaline earth metals show divalency. They are never found in free state in nature due to their reactive nature. On account of low ionization energies and highly negative electrode potential, they act as strong reducing agent.
The alkali and alkaline earth metals cannot be prepared by electrolysis of aqueous solution of their salts. Except beryllium and magnesium, they impart a characteristic color to the flame. The compound of S block elements are predominantly ionic and colorless. However, lithium and beryllium compounds are covalent in nature. They have great affinity for oxygen and nonmetals. The oxides are basic, the hydroxides are strong alkalis. They displace hydrogen from acids from and form corresponding salts. With exception of the beryllium and magnesium, they decompose water and readily evolve hydrogen. Now, second type of elements is p block elements. In the atoms of these elements, the last electron enters the p subshell of the outermost shell. In these elements, np subshell is gradually filled up. The valency shell configuration varies from ns2 np1 to ns2 np6. Here, ऑर्डर ऑफ द पीरियड, थर्ड ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP1. एग्जाम्पल इज बोरान, जहाँ पे N इज इक्वल टू 2 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2p1. फोर्थ ग्रुप में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP6. यहाँ सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है. तो फोर्थ ग्रुप में कार्बन इसका एग्जाम्पल है पहला 1s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिफ्थ ग्रुप में यहाँ पे दो दो एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं. पहला है बोरान, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके दिए हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p ऑर्बिटल में. उसके बाद ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2p4 जो कि NS2NP4. इसी तरह सल्फर का, इसमें n जो है ये बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे. इन तो दूसरे एलिमेंट्स जब अगले ग्रुप में हम जाएंगे तो ग्रुप के अगले मेंबर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएंगे, लेकिन लास्ट में NP4 ही दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. इसी तरह से सेवेंथ ग्रुप में NS2NP5 क्लोरीन क्लोरीन, और लास्ट ग्रुप में NS2NP6 है. तो ये 2 फिर 3 इसी तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे उसके बाद भी जो अगले एलिमेंट होंगे ग्रुप के, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, सब में क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट में NP1, यानी एक ग्रुप में बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. जब पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे तो NP2 फिर NP3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन. जब पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे तो NP1 NP2 NP3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में बढ़ते जाएंगे. जबकि जब हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. जैसे p में 2p इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे इस ग्रुप में, जो कि ग्रुप कौन सा था? फोर्थ ग्रुप. इसी तरह से थर्ड ग्रुप में वही इलेक्ट्रॉन लास्ट में सब में p1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिफ्थ ग्रुप में लास्ट में p2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे. यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे. तो इस तरह से देख सकते हो कि ये तुम्हारे पीरियड्स को बता रहा है कि एक एक पीरियड बढ़ता जा रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में बढ़ता जा रहा है. जबकि ग्रुप में जब हम जाएंगे तो जो शेल हैं वो बढ़ते जाएंगे, N1 N2 N3, यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, लेकिन लास्ट में इलेक्ट्रॉन p सब शेल में उतना ही होगा सब में. तो अब ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो इस तरह से. N5 के लिए क्या होगा? N=6 के लिए ये सारे ग्रुप हैं, और ये जो जा रहा है ऐसे ऐसे ये पीरियड है. तो N जो है ये पीरियड की वैल्यू भी बता रहा है. ठीक है. These elements belong to subgroup A in extended form of periodic table, except zero group in which no subgroup is present.
These elements include some metals, all non-metals, and metallites. S block and P block elements are collectively called normal or representative elements, except zero group element. Each period end with member of zero group, that is a noble gas with a shell, closed shell NS2 NP6 configuration. Prior to noble gas group, there are two chemically important group of non-metals. These are halogens group 17 and chalcogens group 16. Now, general characteristics of P block elements. P block consists of element of six group. Third A from the modern Mendeleev periodic table. Sixth group है seventh A, third A, fourth A, fifth A, seventh A, seventh A, यानी third to seventh A and zero group. The number of electrons in the outermost shell varies from 3 to 8, that is, have general configuration NS2, NP1 to 6. The number of electrons in the penultimate shell is either 2, 8, or 18. Except fluorine and inert gases, P block elements show a number of oxidation states from plus n to n minus 8, where n is the number of electrons present in the outermost shell. Now group third A की oxidation state +3, fourth A की +4 या -4 दोनों हो सकती है, 8, 7, फोर्थ ए और फिफ्थ ए की +5 एंड -3, सिक्स ए की +6 एंड -2 हो सकती है, और सेवेंथ ए की +7 एंड -1 हो सकती है. The oxygen is an exception. However, it can show -2, -1, -half, -1/3. इसके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं कंपाउंड के, एंड प्लस ऑफ O2PtO6 oxidation state. The P block elements generally show covalency, but higher members can show electrovalency. The highly electropositive elements like the highly electronegative elements like halogens, oxygen, sulfur, nitrogen, etc. show electrovalency by accepting electron and forming anions. Some of the elements show coordinate valency also. In the period from left to right, there is regular increase in non-metallic character. However, non-metallic decreases in the group from top to bottom. Ionization energy increase from left to right in a period, while decrease in group from top to bottom. The members of fifth group and zero group have exceptionally high values of ionization energies on account of half-filled and fully filled orbitals in the valency shell. In every period, reducing nature decreases from left to right while oxidizing nature increases. Reducing nature increases in a group from top to bottom. Halogens are strong oxidizing agents. Most of them are highly electronegative. The electronegativity increase in period from left to right and decrease in group from top to bottom. Most of them form acidic oxides. No members of P block series or the salt imparts a characteristic color of the to the flame. Chemical properties change from group to group. It is difficult to summarize them. A number of elements of P block series shows the phenomenon of allotropy. Carbon, silicon, phosphorus, sulfur, boron, germanium, tin, arsenic, etc. show this property. Catenation property is shown by many elements of P block sets such as carbon, silicon, germanium, nitrogen, oxygen, sulfur, etc. Now, third type of elements are D block elements. In these elements, the last electrons enters n minus 1 d subshell. D orbitals of the penultimate orbitals, that is n minus 1 d subshell, is gradually filled up. The configuration varies from 1 minus
n minus 1 d1 ns2 to n minus 1 d10 to ns2. At certain places, the configuration are different than expected. The general configuration of these elements can be represented at n minus 1, d minus 1 to 10, and n as 0, 1, or 2. The elements of third B, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, eighth, 1B, seventh, 1B, and second B belong to this group of modern Mendeleev periodic table. These elements are also called transition elements as their properties are intermediate between S and P block elements. All the transition elements are metal. These elements are classified into four series: 3D, 4D, 5D, and 6D series, corresponding to filling of orbital of 3D, 4D, 5D, 6D subshell of third, fourth, fifth, and sixth energy cell respectively. Each series starts with a member of third group. Every series consists 10 elements each. The end member of 3D, 4D, 5D, and 6D series are the members of second group. The expected configuration of these elements are given here. The element marked with asterisk, that is star, have different actual configuration. 3D सीरीज थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है और सेकेंड ग्रुप में पे खत्म होता है. यहाँ पे मेंबर कौन कौन से हैं? 3D यानी फर्स्ट ट्रांसलेशन सीरीज या विच इज नोन एज 3D सीरीज. स्कैंडियम, आर्गन, स्कैंडियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d14s2, और लास्ट मेंबर है इसका जिंक जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है Ar3d104s2. ये जो ब्रैकेट में दिया है ये इसके एटॉमिक नंबर हैं. 4D सीरीज पहला मेंबर वाई, लास्ट मेंबर कैडमियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दिया है सामने. 3D सीरीज यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में डी में 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. लास्ट मेंबर है 3d10. फिर 4D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d1 में जाता है और कंप्लीट कहाँ होता है? कैडमियम में 3d10 हो जाता है इलेक्ट्रॉन. 5D सीरीज का पहला मेंबर La है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन, उसके बाद 5d1 6s2 होता है. लास्ट मेंबर है इसका, ये सारे किस ग्रुप के एलिमेंट हैं ये यहाँ ऊपर दिया है, ये थर्ड ग्रुप के हैं. लास्ट मेंबर है मरकरी जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 5D में ये कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद 6D सीरीज इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 6D में, और लास्ट मेंबर है 6d10 हो जाता है. तो पहला मेंबर ये हो गया और लास्ट मेंबर ये हो गया. तो कंप्लीट इस तरह से देख सकते हो कि these are the first member of the series and these are the last member of the series. The elements from CE to LU यानी atomic number 58 to 71 are not included. The elements from 90 to 103 are also not included. तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है. 3D सीरीज के ये एलिमेंट्स हैं, उनके ये कॉन्फ़िगरेशन है. 4D सीरीज के ये एलिमेंट हैं और इनके ये कॉन्फ़िगरेशन है. उसके बाद इसी तरह से 5D सीरीज के एलिमेंट और ये हैं उसके उनके कॉन्फ़िगरेशन. ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं कौन कौन से हैं, उनका ये एटॉमिक नंबर है ब्रैकेट में और उनके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और ये 6D सीरीज है. तो उसमें हमने क्या लिया था कि फर्स्ट मेंबर ऑफ 3D सीरीज एंड लास्ट मेंबर कौन सा था? जिंक. इसी तरह से अब इसमें क्या है कि सारे मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज, उसके बाद 4D सीरीज के इसका कॉन्फ़िगरेशन, फिर 5D सीरीज के सारे एलिमेंट उनका कॉन्फ़िगरेशन, 6D सीरीज के सारे मेंबर उनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है. इसको देख करके समझ सकते हो और इसको नोट भी करना चाहिए ताकि सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो किस तरह से
कंप्लीट यहाँ पे दिए गए हैं। Now, general characteristics of D block elements. The general characteristics of D block elements are they are the metals having high melting and boiling points. They are hard in nature and good conductors of heat and electricity. They are malleable, ductile, and possess high tensile strength. They have high densities. The ionization energies of most of D elements, block elements, lie in between those of S and P block elements. They are less electropositive than S block elements and more electropositive than P block elements. The members of 3D series such as platinum, Au, Hg, etc. are inert under ordinary conditions. They are called noble metals. D block elements show variable valency. However, members of third B group Zn, Cd, Hg, and Cn do not show variable valency. Most of the compounds formed by D block elements are colored in the solid or in the solution. Paramagnetism is common in D block elements. This is due to the presence of unpaired electron in n-1d orbitals. Most of the transition elements and their compounds act as good catalysts. They have high tendency to form complex compound. They have high tendency to form alloys with other metals. They form both ionic and covalent compounds. Now, P block elements. In these elements, the last electron enters the n-2f energy shell, that is f orbitals of the n-2 main shell, that is n-2f subshell is gradually filled up. The configuration varies from n-2f1 to n-2 f1, n-1 d1, ns2 to n-2 f14, यानी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा f ऑर्बिटल से 1 to 14 तक फिलअप होगी और लास्ट वाली शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा n-1 d1 ns2. At some places the actual configuration are somewhat different than the expected configuration. Thus, the general configuration can be represented as n-2 f0 to 14, n-1 d में 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ns2. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f block elements. All 4 f block elements, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, आगे ये आ जाता है, ये general electronic configuration. All F block elements belong to third group. The F block elements are of two types. 4F series, that is lanthanides. This series has 14 elements from CE58 to LU71. In these elements, 4F energy shell is gradually filled up. Second series, 5F series, this is known as actinides. This series also has 14 elements from TH90 to LR103. In these elements, a 5 energy shell is gradually filled up. These elements are also called inner transition elements. All the elements are accommodated in third group but separately written in two horizontal rows below periodic table. These are the 4F series elements and this is the 5F series element. General characteristics of F block elements. They are similar to transition metals, that is D block element. The important characteristics are they are all are metals. They show variable valency. +3 is the most important oxidation state. Few elements show +2 and +4 oxidation state. They are paramagnetic in nature. They form colored compounds. They have a tendency to form complexes. Chemically, lanthanides are very similar. It is difficult to separate them
From a mixture by application of a chemical property, the members of the actinide series are also similar in their properties. The members of actinide series are radioactive in nature. Elements above atomic number 92 are not found in nature. These are man-made elements and these are called transunionic elements. Now, comparison of general properties of S, P, D and F block element. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में डिस्कस हो चुका। एस ब्लॉक का है 1s1 to 2, पी ब्लॉक 1s2 NP1 to 6 होता है, डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन और ये है एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी एस ब्लॉक कांस्टेंट 1 या 2 होती है, पी ब्लॉक की वेरिएबल, इन तीनों ब्लॉक में वैलेंसी क्या है, वेरिएबल। एटॉमिक रेडियाई सबसे हाई होती है, बाकी इन सब की लो होती है। इसकी डी ब्लॉक की बिटवीन एस एंड पी और इसकी भी लो। उसके बाद नेचर एस ब्लॉक मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, जबकि पी ब्लॉक में तीनों तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल्स। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ऑल आर मेटल। फिजिकल स्टेट हीलियम एंड हाइड्रोजन को छोड़ करके एस ब्लॉक सब सॉलिड है, जबकि पी ब्लॉक में सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे हैं, जबकि डी ब्लॉक सॉलिड है, जबकि सिर्फ Hg इसमें लिक्विड है और एफ ब्लॉक में सब सॉलिड है। नाउ रिड्यूसिंग नेचर हाई होता है एस ब्लॉक का, इसका लो है पी ब्लॉक का, जबकि डी ब्लॉक बिटवीन एस एंड पी इसका जो है वो अननोन। नाउ रिड्यूसिंग नेचर हो गया। उसके बाद है रिएक्टिविटी, हाईली रिएक्टिव होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट लो रिएक्टिव, डी ब्लॉक बिटवीन एस एंड पी। रिएक्टिविटी हाई ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इनका हो जाता है तेजी से, जबकि जो पी ब्लॉक में है इनका रिडक्शन होता है, और डी ब्लॉक बिटवीन एस एंड पी। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड एस ब्लॉक एलिमेंट्स का बेसिक, जबकि पी ब्लॉक में तीनों तरह के होते हैं, बेसिक, एसिड एंड एम्फोटेरिक। डी ब्लॉक के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और एफ ब्लॉक के ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं, बिकॉज ये दीज आर मेटल्स। नेचर कलर ऑफ कंपाउंड, नेचर आयनिक नेचर होता है एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक आयनिक कोवैलेंट दोनों है, जबकि डी और एफ ब्लॉक का नेचर आयनिक होता है। आयनाइजेशन एनर्जी लो है एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की हाई, जबकि डी ब्लॉक एस और पी के बीच का होता है मामला। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होती है एस ब्लॉक की, जबकि पी ब्लॉक की हाई है, और डी ब्लॉक बिटवीन एस एंड पी। कैटिनेशन पावर एस ब्लॉक में एब्सेंट है, मैक्सिमम इन कार्बन इन पी ब्लॉक, जबकि डी और एफ ब्लॉक में कैटिनेशन एब्सेंट नहीं होता। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज लो इन एस एंड पी बट हाई इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो लो होती है एस एंड पी की, जबकि डी और एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है, जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एट कैटलिस्ट सारे यूज होते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे किस तरह से पीरियाडिक टेबल को हम समझ सकते हैं, किस तरह से जब पहले एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अरेंज किया गया, तो और ज़्यादा क्लियर हुए सारे पीरियाडिक फंक्शंस, और पीरियाडिक जो क्लासिफिकेशन था उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पीरियाडिक टेबल जो मेंडलीव की मॉडर्न पीरियाडिक टेबल थी, और इसमें बहुत कुछ हम अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल की तरफ बढ़ चुके हैं। सारी चीज़ समझने के बाद अगले क्लास में हम लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल पे डिस्कस करेंगे, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, जिसका पूरा डिस्कशन हमने आज की क्लास में किया है।